السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں طیبہ فراز اور میں ہوں نصحت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ رقمی بینک کا لائسنس کا اجرا دو طرفہ تعلقات کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد میں رقمی اسلامک بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دو طرفہ تعلقات کو سرمایہ کاری اور معاشی تعاون میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین عبداللہ مطیری کو رقم اسلامک ڈیجیٹل بینک کا لائسنس دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبک صدر شوکت کے دورہ ازبکستان کی دعوت قبول کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ اپنے قریبی برادرانہ تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے اور حالیہ تاریخی اور نتیجہ خیز سرکاری دورہ پاکستان کے ثمرات پر مؤثر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات جمہوریہ ازبکستان کے پاکستان میں سفیر الچیر تغایتیوف سے ایوان صدر میں ملاقات کے دوران کہی، جنہوں نے صدر پاکستان کو ازبک صدر شوکت مرزایوف کا خط بھی پیش کیا۔ اپنے خط میں ازبک صدر نے دورہ پاکستان کے دوران غیر ملکی مہمان نوازی اور پرتپاک استقبال پر صدر زرداری، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف نے صدر زرداری کو دورہ ازبکستان کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا، جو اس سے قبل دونوں رہنماؤں کی بالمشافہ ملاقات کے دوران دی گئی تھی۔ صدر پاکستان نے یہ دعوت قبول کرتے متعلقہ پاکستانی حکام کو ہدایت کی کہ وہ ازبک ہم منصبوں سے رابطہ کر کے رواں سال کے دوران اس دورے کو حتمی شکل دیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی صورتحال، عوام کے مسائل اور حلقوں میں جاری ترقیاتی کام زیر غور آئیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے اور آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ گئے۔ پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی صورتحال، عوام کے مسائل اور حلقوں میں جاری ترقیاتی کام کا جائزہ بھی لیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کے مجموعی صورتحال، عوام کے مسائل اور حلقوں میں جاری ترقیاتی کام زیر غور لائے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے اور آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف لاہور نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف اقبال چودھری، بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف ایوان وزیر اعلیٰ 90 شاہراہ قائد اعظم جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف پارٹی رہنماؤں اور اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پنجاب میں اس پر بھی گفتگو ہونے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ملک میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نتیجے میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ اور سکور میں بہتری آئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2025 جاری کر دیا ہے، جس میں 2024 کے مقابلے میں پاکستان کے مجموعی سکور میں 1 درجہ بہتری ریکارڈ کی گئی ہے اور سکور بڑھ کر 28 تک پہنچ گیا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان 1 درجہ بہتری کے ساتھ 136 پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں بھی گزشتہ 4 برس کے گڈ گورننس اور مسلسل ادارہ جاتی اصلاحات کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی سکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب میں منعقدہ ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں شرکت کر رہا ہے، جہاں جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 ملٹی رول فائٹر جیٹ اور سپر مشاق بیسک ٹرینر طیارہ نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ورلڈ ڈیفنس شو 2026 دفاع اور سلامتی کے شعبے میں ایک ممتاز عالمی فورم ہے۔ اس نمائش میں پاک فضائیہ کی شرکت نے ایرو اسپیس جدت، آپریشنل قابلیت اور قابل اعتماد دفاعی معاملات
तरक्यात के उभरते हुए मरकज के तौर पर पाकिस्तान की आलमी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती मुकामी एरोस्पेस सनत और PAF की आजमूदा अमली सलाहियतों की आकाश है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की अस्करी हवाबाजी टेक्नोलॉजी का आला तरीन मजहर है और जदीद एवनेक्स AESE रेडार, मौसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निज़ाम और BVR मिसाइल जैसी जंगी सलाहियतों से लेस है, जो इसे जदीद फजाई अफवाज की अमली जरूरियात को पूरा करने वाला एक ताकतवर 4.5 जनरेशन फाइटर तैयारा बनाती है। इसके साथ साथ सुपर मशाक तरबियती तैयारा पायलट ट्रेनिंग के मैदान में पाकिस्तान के मजबूत सलाहियतों को उजागर करता है। अपनी काबिले इत्तेमाद कारकर्दगी, कम लागत और आसान देखभाल के बायस सुपर मशाक को मुतादिद दोस्त ममालिक अपने फजाई अफवाज में शामिल कर चुके हैं और ये दुनिया भर में बुनियादी परवाज की तरबियत के लिए एक मेयारी प्लेटफॉर्म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। नौवां इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खारिया में कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल ने पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत का मुजाहिरा करने पर शरीक टीमों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मशक में मुकाबला की सलाहियत और लगन की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल एक सख्त और पेशावराना पेट्रोलिंग मशक है। मशक का मकसद शरीक टीमों के माबेन जदीद अस्करी ख्यालात, हरबी तजुर्बात और बेहतरीन अमली महारत से इस्तेफादा करना है। ISPR का कहना है कि मशक शरीक ममालिक के दरमियान पेशावराना महारत, बाहिमी सीखने और अस्करी ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। यह फोरम अस्करी रवाबित को मजबूत बनाने के साथ साथ टीम वर्क और बाहिमी एतमाद को भी फरोग देता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तमाम शरीक टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, सलाहियत और बुलंद हौसलों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खिताब कर रही हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं हम आपके साथ और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल, किसी तरह की मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े, बलूचिस्तान से ये दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से ख़त्म करे। बलूचिस्तान अमन, अमान और खुशियों का एक गहवारा हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इज्जत अफजाई का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शफकत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ आपने मुझे वेलकम किया, मेरी इज्जत अफजाई की, और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, गवर्नर साहब की शुक्रगुजार हूँ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। आपके जितने एलाइज यहाँ पे सब तशरीफ रखते हैं, और मुझे खुशी है कि आज मेरा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला विजिट है किसी और सूबे में, और मुझे खुशी है कि ये कोयटा में है, बलूचिस्तान में। सुबह FC हेडक्वार्टर्स गए, जो कमिटमेंट देखी उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैंने जो दी, वो बहुत एक खुशाइन बात है, बहुत हौसला मेरा बुलंद हुआ। यहाँ पर आपके मिनिस्टर्स भी तशरीफ रखते हैं, आपके गवर्नमेंट के मेंबर्स, आपके जो सेक्रेटरीज हैं, सब तशरीफ रखते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ज़रूर ये बात सही रखी कि आपके पास फितना नहीं है, लेकिन आपके पास फितना तो खवारिज है, जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत
बहादुरी की, बहुत इस्तकामत की ज़रूरत है जो आप माशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और इन हालात में बलूचिस्तान को जो है वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू यू सीएम साहब। हम बिल्कुल इस चीज़ की कदर भी करते हैं और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वातीन के खिलाफ, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं हम आपके साथ और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की जरूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉलर, किसी तरह की मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े, बलूचिस्तान से ये दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से ख़त्म करे। बलूचिस्तान अमन, अमान और खुशियों का एक गहवारा हो। हमारी दुआएं आपके साथ है, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इज्जत अफजाई का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि क्वेटा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में खैर मकदम करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। बलूचिस्तान लोगों के मुल्क के साथ हकीकत को सराहती हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी होगी कि बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकूँ। दुआ है कि बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान की आवाम और हुकूमत के शाना बशाना है। क्वेटा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हमरा अहम गुफ्तगू कर रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी है। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्दर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देते हुए उन्हें अदालती नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। अदालत ने हुक्म दिया कि सलमान सफ्दर जेल जाकर बानी पीटीआई की हालत जार और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के हवाले से तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि मुलाकात में सलमान सफ्दर को किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान के लिए गैर कद्र खिदमात को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। जैन मेरिट ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर भी इजहार मुसर्रत किया। अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का मैच से पहले खामियों को दूर करने के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन हुआ। वाज़ेह रहे कि ग्रीन शर्ट्स ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। भारत ने अमेरिका को 29 रन से मात दे दी थी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के क्रिकेट टीम में पाकिस्तानी नियाद फास्ट बॉलर एहसान आदिल को शामिल कर लिया गया। एहसान आदिल की शमूलियत जसदीप सिंह के अनफिट होने के बाद अमल में आई, जिसकी बाकायदा मंजूरी आईसीसी के टेक्निकल कमेटी ने दी है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एहसान आदिल इस वक्त काबिल पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। वो 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके हैं, जबकि कौमी टीम के लिए 3 टेस्ट और 6 वनडे मैचेस में भी शिरकत कर चुके हैं। एहसान आदिल की अमरीकी टीम में शमूलियत को तजुर्बे और फास्ट बॉलिंग अटैक के लिए अहम इजाफा करार दिया जा रहा है, जिससे अमरीका की टीम को टूर्नामेंट में फायदा पहुंचने की तवक्को है।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पहली कामयाबी अपने नाम कर ली है। नई दिल्ली के अरोन जटेले स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले नामीबिया को बैटिंग की दावत दी, जिस पर नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बनाए हैं। नामीबिया की जानिब से जॉन नेकल नुमाया बैटर रहे हैं, जिन्होंने 38 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 42 रन स्कोर किए। नीदरलैंड की टीम ने 157 रन के हदफ के ताकुब में 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। नीदरलैंड की जानिब से 20 दी लेड की 48 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बेहतर रन की नुमाया इनिंग्स खेली और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात और खेलों में ताउन पर ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा वजीथा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हुकाम के ताउन को सराहते हुए कहा कि यह कदम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दोस्ती और पाकिस्तान और श्रीलंका के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स हुकाम के किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि इनकी कोशिशों से खेलों के शोबे में दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अब कोई सियासी जमात या उम्मीदवार इंतखाबी सरगर्मी नहीं कर सकेंगे। 12 फरवरी को पोलिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी समेत बड़ी जमातों ने दारुल हुकूमत ढाका, चिटागोंग, सिलहेट और मुल्क के दीगर शहरों में बड़ी रैलियां निकाली हैं। बांग्लादेश हुकाम ने दारुल हुकूमत ढाका से जारी किए गए बयान में बताया कि मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,77,11,793 है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच चुकी हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर बंदुखेल ने सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब दौरे के दौरान गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदुखेल से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतासिरा खानदानों से इजहार यकजहती करेंगी। मरियम नवाज की वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई काबीना के अराकीन से भी मुलाकात होगी, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के बसंत को बहाल करने की काविश पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद में पंजाब के सकाफती वर्सा को बहाल करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत की काविशों को खराजे तहसीन पेश किया गया। मतन में लिखा गया कि बसंत का फेस्टिवल न सिर्फ पंजाब की पहचान थी, बल्कि दुनिया भर से लोग लाहौर का रुख करते हैं और लाखों लोग रोजगार कमाते थे। बसंत से अरबों रुपए का ज़र मुबादला मुल्क में आता था, जो हमने खो दिया था। मतन में मजीद बताया गया कि पंजाब पर पाकिस्तान के दुश्मनों ने घिनौना वार इस वक्त किया जब मरियम नवाज की काविशों से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया उभर रहा था। ताहम बसंत को तमाम इंटरनेशनल जरीदे नुमाया कवरेज दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है कि उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और इदारे दुश्मनों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त भारत को फील्ड मार्शल की सरबराही में हमारी अफवाज ने दी थी। करारदाद में मजीद लिखा गया, तमाम खारिज को जहन्नम वासिल किया जाएगा और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बसंत को बहाल करने की काविश पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद में पंजाब की सकाफती विरसे को बहाल करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया है। मतन में लिखा गया है, बसंत का फेस्टिवल न सिर्फ पंजाब की पहचान थी, बल्कि दुनिया भर में से लोग लाहौर का रुख करते थे और लाखों लोग रोजगार कमाते थे। बसंत से अरबों रुपए का ज़र मुबादला मुल्क में आता था और जो हमने खो दिया था। मतन में मजीद बताया गया है कि पंजाब में पाकिस्तान के दुश्मनों और घिनौना वार इस वक्त किया जब मरियम नवाज की काविशों से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में उभर रहा था। ताहम बसंत को तमाम इंटरनेशनल जरीदों ने नुमाया कवरेज भी दी और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
नाज़रीन, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने महफूज पसंद के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और आवाम को खराज तहसीन पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौरियों, एयर क्वालिटी की बेहतरी, सकाफती रंगों की बहाली और लाहौर के स्याह आसमान के लौट आने वाले नीले रंग को याद रखना अहले क़यादत और आवाम का ताउन हर नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अहले लाहौर ने महफूज बसंत बनाकर एक मकसद के लिए मिलकर काम करने की बेहतरीन मिसाल कायम की है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के हर शोबे में आलूदगी के खात्मे की जंग लड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात पर सनत, फैक्ट्री, भट्टे, गाड़ियां, रिक्शे, होटल चलाने वालों समेत अहले पंजाब और लाहौरियों ने भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने कहा कि कभी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, जहां आवाम के मफाद की बात होगी तो वहां बैठूंगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब करते वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुराने और आउटडेटेड कोर्सेज से हम बेरोजगारों को फौज भर्ती कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौके नहीं, क्योंकि हमारे सूबे को हमेशा तजुर्बा गाह बनाया गया है। इस बार खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा गाह बनाने नहीं दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मज़ीद कहना था कि अमन व अमान के हवाले से एक मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक अहम मुलाकात होने जा रही है। हमारा पहला मसला अमन व अमान का है। नून लीग की रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि मेरे वालिद और मैंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन गलत बातों को तस्लीम नहीं किया। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा है कि पार्टी वर्कर्स हमारे माथे का झूमर है। नून लीग क़यादत के मुश्किल तरीन दौर में पार्टी वर्कर्स ने पार्टी का सबसे ज्यादा साथ दिया। पार्टी वर्कर्स ने मुश्किल तरीन हालात में मुश्किलात और सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि कौमी असम्बली से एक बिल पास होना चाहिए जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात एक वक्त में करवाए जाएं, ताकि अख्तियारात नीचे तक मुंतकिल होंगे और लोगों को बेहतर अंदाज में रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नून लीग की हमेशा कोशिश रही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करें। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच गया था तो नून लीग की मस्बत पॉलिसियों ने मुल्क को बचाया। अभी आपको बताएंगे, लाहौर में चुगताई हेल्थ केयर ने खवातीन की सेहत के फरोग के अज़्म को मजीद मजबूत करते हुए टुगेदर फॉर होप के उन्वान से ब्रेस्ट हेल्थ आगाही मुहिम का इनेकाद किया है। मुहिम के तहत ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस और आगाही के फरोग के लिए 100 खवातीन को मुफ्त मेमोग्राम स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। टुगेदर फॉर होप के जरिए चुगताई हेल्थ केयर का मकसद एहतियाती सेहत के रुझान को फरोग देना और बुनियादी तशखीसी सहूलियात तक रसाई को बेहतर बनाना है। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन, कॉर्पोरेट नुमाइंदगान, कम्युनिटी के अफराद और शराकतदार इदारे यकजा होंगे ताकि खवातीन की सेहत से मुतल्लिक आगाही और वकालत को फरोग दिया जा सके। जदीद तशखीसी टेक्नोलॉजी और मरीजों पर मरकूज खिदमात में मुसलसल सरमायाकारी के जरिए चुगताई हेल्थ केयर पाकिस्तान भर में खवातीन के लिए मसावी, जामे और काबिल रसाई सेहत की सहूलियात की फराहमी के अज़म पर कायम है। टुगेदर फॉर होप के जरिए चुगताई हेल्थ केयर एहतियाती सेहत, खवातीन को बाख्तियार बनाने और कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए अपने अज़म का अयादा करता है और खवातीन को अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त और मस्बत इक़दामात की तरग़ीब देता है। जो खवातीन हैं उनमें ये अवेयरनेस रेज़ की जाए, उनको ये बताया जा सके कि स्क्रीनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर टाइमली स्क्रीन कर लिया जाए तो खवातीन इस मूजी मर्ज से बच सकती हैं। ये एक जानलेवा मर्ज़ है, लेकिन इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी हवाले से चुगताई लैब ने आज बहुत बेहतरीन डॉक्टरों को और पैनल्स को अरेंज किया है और ख़वातीन को अरेंज किया है ताकि हम ये अवेयरनेस, ये आगाही उन तक पहुंचा सकें और ये पैगाम उन तक पहुंचा सकें कि इसकी स्क्रीनिंग अपने लिए भी करें, अपने बाकी रिश्ते वाले जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके लिए भी करें और इस पैगाम को आगे लेके जाएं। आज चुगताई हेल्थ केयर में तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़वातीन का फ्री मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और हम इस तरह की अवेयरनेस की बहुत सारी कैंपेन्स अक्रॉस द कंट्री करते हैं और मल्टीपल डिस्काउंट प्रोग्राम्स हैं जहां पर ख़वातीन की हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट्स को, डायग्नोसिस को बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पर किया जाता है। याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और हम उसमें उसी तरह से उससे लड़ सकते हैं जब हम टाइम से अपना मेमोग्राम करवाएं और उसको वक्त से पकड़ लें।
آج کا سیشن جو چغتائی لیب نے کرایا ہے وہ بیسکلی عام عوام کے لیے بریسٹ کینسر اویئرنیس پر ہے، اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہماری عام خواتین کو ایجوکیشن دی جا سکتی ہے کہ بریسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو کہ اگر اس کا ہم ارلی ڈائگنوسس کر لیں تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھے سے ہو سکتی ہے اور پیشنٹ جو ہیں وہ بہت عرصہ کینسر فری گزار سکتے ہیں. چغتائی لیب کی اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے وی آر آفرنگ 100 پیشنٹس فری میموگرامس، جہاں پہ پیشنٹس کو ہے کینسر تب ڈائگنوز ہوگا جب ابھی اس نے لمپ بھی نہیں بنایا. سو آئی تھنک دس از اے ویری ویری گڈ اپرچونیٹی ایز پارٹ آف دا چغتائی لیب، اور آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویری گڈ ایجوکیشن سیشن. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت تاہم اجلاس صاف پانی کے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آرسنگ زدہ اور آلودہ زمینی پانی والے علاقوں میں فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی. دھارابی، میروال اور پھلیانہ ڈیم پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے. خوشاب، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان میں 4 بوائلنگ پلانٹس لگیں گے. صاف پانی منصوبوں سے 2 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کی آبادی مستفید ہو سکے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر منصوبے کی تکمیل کے لیے تیزی سے عمل جاری ہے. لاہور میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے کا آپریشن، مختلف علاقوں میں 104 املاک سربے مہر کر دی گئی ہیں. ترجمان کے مطابق ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن، اقبال ایونیو، گرین ایکر سوسائٹی، مسلم ٹاؤن، گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، سبزہ زار اور گورنمنٹ سپیریئر سروسز اسکیم میں آپریشن کیا. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا. غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس نہندگان املاک کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز کے زیر اہتمام شاعر انقلاب فیض احمد فیض کی یاد میں فیض ویک 2026 کا آغاز ہو گیا. افتتاحی روز کلام فیض مصور کے عنوان سے مصوری کا مقابلہ منعقد ہوا. مختلف تعلیمی اداروں کی 22 طلباء نے شرکت کی ہے اور معروف مصور اعجاز انور نے جج کے فرائض انجام دیے، جبکہ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری اور ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئرز محمد صدیق اوان بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کہا، فیض احمد فیض کی شاعری امید، انسانی وقار اور سماجی انصاف کا پیغام دیتی ہے جو آج بھی نئی نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا، فیض ویک کا مقصد طلباء میں ادب و فن سے وابستگی پیدا کرنا اور انہیں تخلیقی اظہار کے مواقع فراہم کرنا ہے. فیض ویک میں تھیٹر، ترنم، بیعت بازی اور نظم، غزل اور اس کے تحت مضمون نویسی کے مقابلہ جات کے علاوہ فیض سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ معروف ناول نگار، ڈرامہ نگاری کا بڑا نام فاطمہ سریا بجیا کو دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت گئے. فاطمہ سریا نے ٹیلی ویژن کے علاوہ ریڈیو اسٹیج پر بھی کام کیا، جبکہ سماجی اور فلاحی حوالے سے بھی ان کے کام قابل قدر ہیں. ان کا خاندان بھی ادبی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. 1 ستمبر 1933 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والی فاطمہ سریا مقبول ترین ڈرامہ رائٹر تھیں. ان کے لکھے گھریلو ڈرامے ہر دور میں سب کی پسند رہے. 1997 میں ان کی حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. اس کے علاوہ انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں جاپان کا اعلیٰ سول ایوارڈ بھی شامل ہے. 2012 میں ان کے صدر پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز سے نوازا گیا. ادب کا یہ روشن چراغ گلے کے کینسر میں طویل علالت کے بعد 10 فروری 2016 کو 86 برس کی عمر میں گل ہوا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.